Hi, good morning. Today I'm wearing a very bright case. This is also from West Bengal. Um, about saris, I am fanatic about saris. So yesterday there was snowfall in Masuri. We live in Dehradun, so Dehradun is very cold. Now I am not making this video from Dehradun. It's from near about Rishikesh. So even then I was wearing sari. So I 80 to 90% of the days I do wear sari at least once a day to go out because I don't know what will happen uh, when the next generation at my own place only will come. Anybody will wear or not does not matter to me also. It should not matter. But till I leave, definitely I will eat shukto posto, ghonto chachuri, ombol, etc. And I will wear sari. Sari also I wear saris of different states, but definitely Kantha, Khes, these are Khes and Bhujodi is very favorite of mine because I love thick cotton saris. So Bhujodi is you cannot buy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bhujodi. You can buy, that's wastage of money because each cost pure cotton thick Bhujodi each cost 5,000, 6,000 plus, and case is very cheap, near about 1,000 max. So today's video is about, every time I always speak about your character, your extramarital and all. Why am I so much bothered about extramarital? Actually, I did not tell you today also. I'm not going to tell that what is the particular house and planetary position which describes whether you are having extramarital, whether you will have extramarital in the future or not, and how many extramaritals you have, and what is like the relationship of that person to you, that is father-like figure, mother-like figure, or friend with whom you are having extramarital. Everything is very clear in your horoscope. So I'm not describing that thing, but that particular house is such a way related to our fifth house. Fifth house is child, related to your fifth house, that destroys life of your child. There are so many couples where both of them are having extramarital and both of them are very free. They think they're very modern, they're very free, but your child knows everything. So you are doing either of the thing. One thing you are doing, you are inculcating a child who does not value relationship, and you are making line of people, line of generations of fraud people who will do fraud in their family. Luckily or unluckily, everybody in that family might be both the parents are having extramarital and both the kids are not having. Like 2 kids, 3 kids are there. Among them, 2 are also having extramarital or many physical affairs and all. But one is not. Life of that one is horrible. And life of those kids who are also not serious about relationship, you are also having many relationship, your child is also having many relationship. So I don't want to utter that word. उस टाइप का जनरेशन चलाना है क्या, जो गंदे जगह बैठते नहीं हैं, घर में रहते हैं, बड़े बड़े आलीशान घर में रहते हैं, और गंदगी खुद के लाइफ में भी है और बच्चे के लाइफ में भी आप गंदगी ही देना चाहते हो, तो ठीक है, दो, यू आर मोस्ट वेलकम. इट extramarital is related to a particular house of astrology, which is related somehow, that is falling such a way with your kids house, that is the fifth house, that it ruins gain of the child. The child will not gain the much the child should. Is it clear? There are so many people who are very smart. They think they are smart. Actually, they are whatever. I don't want to utter that name. I really hate those kind of people. हेट बोलने से भी, हेट शब्द भी छोटा है एक्चुअली. मेरा जो फीलिंग है अंदर का, इतनी गंदगी, मतलब आई फील सो गंदा अबाउट दोज पीपल. आई डोंट हैव एनी ट्रबल इन 2, 3, 4, 5 marriages. If you have guts, you go for a relationship.
You leave your husband, leave your wife, go for divorce, go for another relationship. लेकिन रहेंगे एक के साथ, रिलेशनशिप किसी और के साथ चलाएंगे, एंड देयर आर सो मेनी लाइक एक्सक्यूजेस. इस एक्सक्यूज से ही मैं एक बुक लिख सकती हूँ, वॉट एवर. देयर आर सो मेनी हु विल टेल कि मेरा भी एक्सीडेंट है, मेरे हस्बैंड का भी है. वी हैव अंडरस्टैंडिंग एंड लुक एट आवर चाइल्ड. मेरा बच्चा तो डॉक्टर है, इंजीनियर है, फलाना है, तो हमारे एक्स्ट्रा से मेरे बच्चे की लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ. नो, यू आर रॉन्ग. उसका मैरिड लाइफ ख़राब होने का चांसेस 90% है, क्योंकि अगर वो बच्चा खुद का कैरेक्टर अच्छा भी है तो भी वो गलत चॉइस ही करेगा, क्योंकि वो गलत लोगों के साथ बड़ा हुआ है. सो दैट चॉइस गेट मोल्डेड विथ द पेरेंट्स. सो गलत चॉइस करेगा इफ़ दैट पर्सन इज़ गुड इन कैरेक्टर, और एक ख़राब कैरेक्टर की से शादी कर लिया. मॉरल पॉलिसिंग सोच रहे हो, जो सोचना है सोचो. आई एम दिस. आपको अगर नहीं सुनना है मेरा वीडियो, यू कैन स्किप. जिसको ख़राब कैरेक्टर वालों का आपको वीडियो सुनना है, आप बेशक सुनिए, मेरा वीडियो स्किप कर दीजिए. सो आपका बच्चा अगर जितना उसमें कैपेबिलिटी है उतना वो कर नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि बच्चा हमेशा दो पेरेंट में अगर जो बच्चे के पास रहते हैं, कम से कम सोच लो, अगर एक का कैरेक्टर बिल्कुल ख़राब, वो साथ में नहीं रहते, कहीं और रहते हैं, किसी और सिटी में रहते हैं, या वॉट एवर, देन इट इज़ अ डिफरेंट इशू. या तो डाइवोर्स ही है, तो जो बच्चा एक पेरेंट के साथ रहता है जिसका कैरेक्टर ठीक है, और दूसरा जो है उसमें भी बच्चे के पर इम्पैक्ट होता है. बच्चे को सुनना पड़ता है सोसाइटी से कि तेरा बाप तो ऐसा है, तो तेरा कैरेक्टर क्या होगा, तेरी माँ तो ऐसी है, तो तेरी कैरेक्टर क्या होगा. सो बच्चा अच्छा भी है तो भी उसको बचपन से सुनना पड़ता है कि तुम तो वही हो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ऐसे हैं. ठीक. और अगर बहुत छुप के करते हैं, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि दे आर सो इंटेलिजेंट कि भगवान को भी नहीं दिख रहा है वो क्या गंदगी फैला रहे हैं. सो आप जो भी कर रहे हो, भगवान को भी दिख ही रहा है, इंसान को भी दिख रहा है. अगर कोई भी इंसान को नहीं दिख रहा है, कई लोग हैं ना जो फैमिली मेम्बर के साथ एक्सटर्नल रहता है, तो बाहर से किसी को दिख नहीं रहा है, ठीक है, बच्चे को दिख रहा है, बच्चे को समझ में भी आ रहा है. आई कैन टेक नेम ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड who knew that mother is having sexual relation with uncle. ठीक है, ये उसको पता था. And very unfortunately that girl led a very unhappy life. Naturally, जो अपने माँ को, उसकी माँ अभी भी जिंदा है, गंदगी करके. ठीक है, बच्चे का लाइफ बिल्कुल बर्बाद, उसका मैरिड लाइफ बिल्कुल ख़राब, उसका पढ़ाई नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ. शी वॉज ऑलवेज अनहैप्पी टिल हर लास्ट डे, एंड ऑलवेज ओनली रिलेशनशिप में अनहैप्पी, ऐसा नहीं. शी न्यू इट एंड शी टोल्ड इट टू मी सेवरल टाइम्स. उस समय मुझे सोच लेना चाहिए था एक्चुअली कि आई कैन बी अ हीलर, बिकॉज दिन भर लोगों का ये सुनना, गंदा बात सुनना, और उसको समझाना कि नो, यू कैन लीड अ हैप्पी लाइफ, यू कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ. ऑल्दो आई नो एज एन एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल दैट ऐसे लोगों के लिए नॉर्मल लाइफ लीड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. अगर आपका कैरेक्टर ख़राब है, यू डोंट गो फॉर अ चाइल्ड. अब बच्चा पैदा ही मत कीजिए. आई नो पीपल हु आर वेरी कंफर्टेबल इन एक्सट्रामैरिटल एंड हैव गिवन बर्थ टू एबनॉर्मल चाइल्ड इज़ इनकेपेबल ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स. बड़ा हो गया है लेकिन अभी बात करना नहीं आता, इस टाइप का है. एंड आई नो इट वेरी वेल बिकॉज शी वॉज माई वेरी क्लोज फ्रेंड. वंस शी एडमिटेड, मैं उनका नाम नहीं एक्सपोज कर रही हूँ, आई केप डिस्टेंस. आई नो अमंग माई क्लाइंट्स ऑल्सो सो मेनी हु आर वेरी कंफर्टेबल एंड स्मार्ट. दे थिंक दैट, मतलब मैम को बोलेंगे तो ठीक है, एस्ट्रोलॉजर को सब कुछ बोलना पड़ता है. आई एम नॉट एक्सपोजिंग देयर नेम. ठीक है, एज एन एस्ट्रोलॉजर आई हैव टू मेंटेन प्राइवेसी. बट उनमें भी इस टाइप का है कि हस्बैंड वाइफ दोनों बहुत स्मार्ट है, दोनों का रिलेशनशिप चलता है, एंड दैट इज़ एक्सेप्टेबल टू बोथ. चाइल्ड का नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, बट सब में ऐसा होता है ऐसा नहीं है. बहुत सारे ऐसे हैं कि माँ धुआंधार चला रही है, अपने कोलिग्स के साथ घूम फिर रही है, उससे ज़्यादा कुछ भी कर रही है, रौनक ही रौनक है, फेस में कोई मेकअप नहीं है, लेकिन इतना रौनक है. क्यों? रीज़न सुनोगे? हस्बैंड खर्राटा लेते हैं. अच्छा, तो इसलिए किसी और के साथ सोने का मन करता है. किसी किसी का है कि वाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा भी
लॉजिक होता है किसी हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल में जाने के लिए। माई वाइफ इज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस मतलब आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो आप उस मोहल्ले से वाइफ चुन के लाते। एक्स्ट्रा मैरिटल के लिए ऐसे ऐसे आपका रहता है एक्सक्यूजेस। एंड माई वीडियोज़ आर ओनली फॉर पीपल हु आर गुड कैरेक्टर, हु आर ऑफ गुड कैरेक्टर, जो 4 जन के साथ लाइफ में नहीं सो सकते हैं, जिसके लिए एक काफ़ी है। और एक के साथ सोए हैं मतलब वो कल्पना करने में भी उनको लज्जा आती है कि दूसरे के साथ कैसे सोएंगे। इवन देन आई एम इन सपोर्ट ऑफ सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज। इफ इट डज नॉट गो वेल, आई थिंक वन कैन गो फॉर अनदर मैरिज। मेरे फ्रेंड्स जो डाइवोर्सी है, बच्चे भी बड़े हो गए, निपट गए उनके बच्चे, इवन मी डाइवोर्सी, विडोयर, हम सब एनकरेज करते हैं कि दूसरी शादी करो। ऐसे भी बहुत आदमी या बहुत औरत है जो विडो या विडोयर है, डाइवोर्सी है, ऐसे कहीं से आप जा सकते हो। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो खुद डाइवोर्सी तो है नहीं, लेकिन 10 जन के साथ अफेयर है, ये बोल के कि मेरी वाइफ ये है वो है वो है। तो ऐसे के साथ अगर आप अफेयर में जा रहे हो तो भगवान आपको बचाए, आपके बच्चों का बुरा होगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मुझे अभी तक जितना आता है इतना मुझे समझ में वेरी क्लियरली आता है। बच्चे का बुरा होने से क्या होता है पता है? आपका अगला जन्म भी गया। अगला जन्म क्या, अगले से अगला, उसके अगला, आपका फ्यूचर जो लाइव्स आने वाला है वो भी गया। आप इस जन्म में जितना गंदगी कर सकते हो फैला लो गंदगी, ठीक है। रायता फैला लो दही का, ऊपर से भगवान तो देख ही रहे हैं और सब हिसाब किताब लिख रहा है। और नहीं डरते हो तो मत डरो। जब आप मर के ऊपर जाओगे ना तो ऐसा टाइट आपको किया जाएगा, क्योंकि भवाद भवम 5th हाउस एंड 9th हाउस और भवाद भवम ऑफ ईच अदर, ठीक। 5th से 5th हाउस इज 9th, 5 6 7 8 9, सो 5th से 5th हाउस इज 9th, 9th से 9th हाउस इज 5th, 9 10 11 12 1 2 3 4 5, सो 9th से 9th हाउस, 9th का भवाद भवन 5th है और 5th का भवाद भवन 9th है। सो 9th का रिलेशनशिप, 9th इज योर लक, 5th इज योर चाइल्ड। सो कहते हैं जिसने चाइल्ड का अच्छे से परवरिश किया, बच्चे के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करके हो या जो भी करके हो, कोई माँ है कि कोई नहीं है, उसको कमाना पड़ता है। बट व्हेन शी कम्स होम, ऑफिस से भी 10 बार फ़ोन करते हैं, जब घर आते हैं तो बच्चे का अच्छे से जो 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा जो भी 5 घंटा घर में रहते हैं, वहाँ पूरा अटेंशन बच्चे को देते हैं। ऐसा नहीं कि मोबाइल में लगे हुए हैं, इसको ये मैसेज कर रहे हो उसको वो मैसेज कर रहे हो। बच्चे के पीछे टाइम दीजिए। जब आप बच्चे के पीछे टाइम देते हो तो क्या होता है, 9th हाउस का भवाद भवम 5th है, तो भाग्य का भी भाग्य उदय हो जाता है जब आप बच्चे के पीछे ध्यान देते हो, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि अरे वो तो बच्चे के पीछे पड़ी रहती है, उसका बच्चा क्या कर रहा है, उसका बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है। दैट बच्चा विल लीड अ नॉर्मल लाइफ। हैप्पी तो बहुत दूर की बात है, वो तो सपना है, वो छोड़ दो। एक आपका बच्चा एक नॉर्मल लाइफ लीड करे, उसके लिए ही एक माँ बाप को बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ता है। माई हस्बैंड यूज्ड टू से कि बच्चा होना ही नहीं चाहिए। अगर आप कैरियरिस्ट हो, माई हस्बैंड यूज्ड टू से, अगर आप कैरियरिस्ट हो, कैरियर के ऊपर आपको बहुत ध्यान है, बच्चा हो ही नहीं। क्योंकि आप पढ़े लिखे हो और आप दिन भर ऑफिस में रहते हो, आपका प्रमोशन के ऊपर प्रमोशन हो रहा है, और बच्चा अगर सर्वेंट से पला बड़ा है तो बच्चे को पैदा करने की ज़रूरत ही क्या है? उसका क्लास तो सर्वेंट क्लास हो गया ना। अगर बच्चे का परवरिश ही सर्वेंट क्लास पीपल ने किया तो ऐसे बच्चा पैदा करके फ़ायदा ही किया हुआ। जो जिसके हाथ में बच्चा बड़ा हो रहा है वो सीरियल देख रहा है, देख रही है, उसका खुद का पढ़ाई नहीं है, तो आपके बच्चे को क्या गाइड करेंगे? If you are very lucky, you have educated parents, your child is home, your parents are home and your parents are like me, जो कि टीवी नहीं देखते हैं, नेटफ्लिक्स नहीं देखते हैं, दिन भर अच्छा काम करते हैं, उसके हाथ आप बच्चे को छोड़ के जाते हैं, ट्यूटर आके भी पढ़ा रहे हैं, बट योर मदर और योर फादर और यू बोथ फादर मदर और इन लॉज आर देयर एट होम टू सी लुक आफ्टर। इन लॉज माने पूरा दुनिया के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट फादर इन लॉ मदर इन लॉ। आपके साथ रिलेशन जैसा भी हो, मोस्ट ऑफ द टाइम 80% टाइम फादर इन लॉ मदर इन लॉ, फादर मदर, दे आर अटेंटिव टुवर्ड्स द चाइल्ड, होना चाहिए। वो दादा दादी नाना नानी जो बच्चे को ट्यूटर मोलेस्ट कर रहे हैं और वो टीवी देख रहे हैं, वो उनको मर जाना चाहिए। एक्चुअली उनको ये राइट ही नहीं है कि उनको नाती पोता हो या उनको बच्चा हो। अगर आपके घर में ट्यूटर आपके बच्चे को मोलेस्ट कर रहे हैं और आप टीवी देख रहे हो
और वो टीवी देखने के आवाज़, टीवी की आवाज़ से आप ये सोच रहे हैं कि मैं स्टोरीज बना रही हूँ। आई एम वेरी लकी। आज ही मैं ईशान को बोल रही थी, मेरा ऐसा हॉरोस्कोप है ईशान, मतलब बहुत नसीब से मुझे ऐसे माँ बाप मिला है जो पैसे तो उतने नहीं थे, बट आई हैड अ सेफ चाइल्डहुड, जिसलिए आज मैं हीलर या एस्ट्रोलॉजर हो सकी हूँ। एस्ट्रोलॉजर होना मतलब एस्ट्रोलॉजर से भी हीलर। दिन भर लोगों का रोना सुनना पड़ता है, एंड आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे घर बैठ के कि कितना ज़्यादा कष्ट में कई सारे लोग होते हैं जिसके माँ बाप भी ठीक नहीं हैं, पति भी ठीक नहीं है या पत्नी भी ठीक नहीं है। ऐसे लोग, उनका लाइफ कितना डिफ़िकल्ट होता है। वो शायद एक एस्ट्रोलॉजर के पास, एक हीलर के पास आए हैं, वो लास्ट होप लेके कि मैं शायद ज़िंदा रहूँ आगे। मतलब वो सुसाइड करने के कंडीशन में भी लोग आते हैं जिनके मतलब जैसे माँ बाप का कंडीशन है वैसे ही पति या पत्नी का कंडीशन है। इतना हॉरिबल लाइफ होता है, या गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड का कंडीशन होता है, इतना हॉरिबल लाइफ लेके भी आते हैं। अच्छे पेरेंट्स होने के बाद भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका बच्चे का परवरिश अच्छा होगा। दोनों पेरेंट में अगर एक अच्छा है, वो जो पूरा अच्छे तरीके से सब कुछ करके अपने बच्चे का परवरिश कर रहे हैं, वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो एक खराब पेरेंट्स है, जो झूठ बोलते हैं, जिनका कैरेक्टर खराब है, वो जो एक खराब पेरेंट है, उनका छाया भी पड़ रहा है आपके बच्चे पर। तो पेरेंटिंग इज द मोस्ट टफ थिंग इन दिस होल वर्ल्ड। पैसा कमा लेना डिफिकल्ट है, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि पैसा आप गलत तरीके से भी कमा सकते हो। बच्चा आप गलत तरीके से बड़ा नहीं कर सकते हो। अगर गलत तरीके से बड़ा करोगे तो गलत ही होगा। हाँ, अगर चोरों का संप्रदाय बनाना है या वेश्याओं का संप्रदाय बनाना है, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू। ठीक है, मैं यही बोलती हूँ। 2-4 लोगों के साथ जो सो जाते हैं ना, क्योंकि ये कारण, क्योंकि वो कारण, उनको मैं यही कहती हूँ कि उस धंधे में चले जाते तो कम से कम इनकम हो जाता। ऐसे तो इनकम भी नहीं हो रहा है, कैरेक्टर भी जा रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया कि 9 to 9 इज़ 5 एंड 5 to 5 इज़ 9। तो आपने अगर पिता का सेवा नहीं कर पाए, बहुत सारी लड़कियों का ये कंप्लेन रह सकता है। लड़कों को तो खैर वो फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम रहने के बावजूद बहुत ऐसे लड़के भी हैं, बहुत नहीं हो तो कुछ कुछ ऐसे लड़के तो है ही कि मेरे वाइफ अलाउ नहीं करते, या मेरे देयर कैन बी मेनी रीजंस। बाप के पास पैसे बिल्कुल नहीं है, माँ के पास पैसे बिल्कुल नहीं है, और बेटा कमा रहा है लाखों में, बेटी कमा रही है लाखों में, लेकिन माँ बाप जो है भिखारी जैसा रहते हैं, फटे कपड़े पहन के, और ये सब व्हाटएवर। मैं तो, मेरे घर वाले जब तक ज़िंदा थे तब तक एक कॉस्टली कपड़ा मेरे पास था ही नहीं। मैं जब खरीदती थी तो सबके लिए खरीदती थी, मेरे लिए भी 10,000 का एक साड़ी मैं ले सकती थी, लेकिन लिया कभी भी नहीं। व्हेन आई हैड फैमिली, मैं अगर 2,000 का एक लिया, 2,000 का एक बहन को दिया, माँ को दिया, ननद को दिया, सासू माँ को दिया, इसीलिए मेरे पास 10,000 के कपड़े नहीं होते थे, क्योंकि मैं मिल बांट के सबको दे के। अभी तो कोई भी नहीं है। सासू माँ है, अभी कुछ दिन पहले 1800 का एक कॉटन साड़ी, मलमल में ब्लॉक प्रिंट, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन कॉटन, बहुत सॉफ्ट कॉटन है, उनको पहन के मतलब कंफर्टेबल। एज होगी ना बहुत। मेरे हस्बैंड, वो मेरे हस्बैंड के पास रहते हैं, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, हस्बैंड के पास रहते हैं मतलब वो रहते थे, फादर इन लॉ के डेथ के बाद वो अकेले रहते थे, एक सिस्टर और नर्स और सर्वेंट के साथ। मैंने ज़बरदस्ती उनको देहरादून लाया। फिर मुझे समझ में आया कि घर में अगर फुल टाइम अरे काम करने वाली हो तो ईशान का पढ़ाई नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ सासू माँ हैं एक कमरे में, मैं एक कमरे में हूँ, हस्बैंड, मैं और मेरे हस्बैंड एक कमरे में है, बेटा एक कमरे में, बीच में जाके देखना पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, इट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन जब मतलब आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ फुल टाइमर काम करने वाली, लेकिन जब कोई अगर बहुत एजेड हो गया है, ठीक है, सब कुछ स्लो हो गया है, तो दे नीड अ फुल टाइमर सर्वेंट, दे नीड। हस्बैंड, मेरे हस्बैंड तो रांची में ही थे, मेरे सासू माँ, तो ही वॉज, ठीक है, वो शी कैन मैनेज एन इस टाइप का। मैंने बोला नहीं, शी कैन, व्हाट डू यू मीन बाय शी कैन मैनेज? एक्चुअली सासू माँ जॉब के साथ संस्थाएं भी चलाती थी, तो हार्डली शी कुड मैनेज एनी टाइम एट होम। लेकिन मैंने सासू माँ को देखा है कि कॉलेज से समिति गए हैं और समिति से घर आए हैं रात के 9:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, बट 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, जब मैंने देखा है जब नौनद की बेटी रहती थी, वो 3 घंटा वो खाना पकाते हुए उस बच्चे को पढ़ाई है।
जब वो घर में रहती थी तब पूरा अटेंशन देती थी, लेकिन हाँ घर में वो रहती ही ज़्यादा नहीं थी। वॉटेवर, मैं तो बहुत रूड हूँ, झगड़ालू हूँ, जो भी हूँ, मैं ज़बरदस्ती, आई एम वेरी 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 स्ट्रेट फॉरवर्ड, मेरा मुंह में कोई लॉक नहीं है। आई सेंट माई मदर इन लॉ टू माई हस्बैंड, और मैंने हस्बैंड को बोला कि जब तक जिंदा है वो तब तक आपके पास ही रहेंगे, नर्स है, सब कुछ देखभाल करेंगे। मेरे हस्बैंड जो जहाँ भी किराए में रहे, सब जगह कंप्लेन रहता था कि वो घर ही नहीं आते हैं, घर ही नहीं आते हैं, लेट घर आते हैं, इसके घर जाते हैं, उसके घर जाते हैं, लोग कहते हैं अकेले महसूस करते हैं। लेकिन मैं, ईशान सुबह कॉलेज निकलता था, स्कूल निकलता था, स्कूल से आके ट्यूशन जाता था, ठीक है, मतलब क्लास 9 आधा या 10th ऑनवर्ड्स, आकाश गया है क्योंकि कॉम्पिटिटिव देना है, तो घर आता था 8 बजे। तो सुबह के 6 बजे से 6:30 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक लड़का बाहर ही रहता है। तो मैं क्या करूँ, मैं क्या इसके घर उसके घर घूमते रहूँगी? आई नेवर डिड दैट। मेरा अपना हॉबीज़ बहुत सारा है, पढ़ना, लिखना, एस्ट्रोलॉजी सीख रही थी, उसके साथ मेरा आई लव नीटिंग, स्टिचिंग, एवरीथिंग। जिस समय एस्ट्रोलॉजी इतना अच्छे से नहीं चल रहा था, जब शुरू हुआ था, या जिस समय एस्ट्रोलॉजी एज ए प्रोफेशन मैंने नहीं लिया था, उस समय भी, मतलब इट वॉज माई हॉबी फ्रॉम माई चाइल्डहुड डेज, बिकॉज बोथ माई पेरेंट्स हैड हॉबी ऑफ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। तो उस समय क्या था कि मेरे और हॉबीज़ थे, तो मैं इसके घर उसके घर बैठूंगी नहीं। नाउ माई हस्बैंड इज़ कमिंग होम अर्ली बिकॉज मदर इज़ देयर, शी इज़ सिक, शी इज़ एजेड। तो हर आदमी, हर औरत का ये हक होता है कि उनको अपने बुढ़ापे में बच्चों से कम इतना ध्यान मिले। वॉटेवर, जब आप पिता का ध्यान रख पाते हो, इट इज़ वेरी गुड। अगर आपके पिता साथ में नहीं रहते हैं, इंडियन सिनेरियो में तो बहुत कम ऐसा फैमिली है जहाँ लड़की के माँ बाप लड़की के आसपास आ भी पाते हैं। शादी हो गई मतलब माँ बाप मर गए, इस टाइप से ससुराल ट्रीट कराते हैं कि जाना है मतलब सुबह जाओ शाम को चले आओ, जैसे उसके माँ बाप बूढ़े नहीं होते, खाली लड़कों के माँ बाप बूढ़े होते हैं। मैंने अपने सासू माँ को क्यों हस्बैंड के पास भेजा, उसके पीछे और भी एक रीज़न है, क्योंकि मैं अपने माँ का बिल्कुल नहीं ध्यान रख पाया। बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी, टिकट भेजने के बाद भी टिकट फाड़ के फेंक दिया गया। ज़बरदस्ती जाके करने से भी माँ को नहीं ला पाई, बिकॉज माई सिस्टर वॉज देयर एंड शी वॉज नॉट रेडी एंड शी न्यू इट वेरी वेल कि माँ अगर यहाँ आ जाएगी तो उसका घर कोई हड़प लेगा। एंड झारखंड, बिहार, जो भी कहो, इट इज़ वेरी 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 हॉरिबल, बहुत ही घटिया जगह है। एक एक इंसान बहुत घटिया एंड मेटेरियलिस्टिक है। वो तो बहन के मरने के बाद समझ में आ रहा है। तो माँ को मैं नहीं ला पाई। मुझे लगता था कि लास्ट लाइफ माँ 5 साल 10 साल जब तक जिए, खाली टीवी देखो, चुपचाप बैठे रहो, आई विल डू एवरीथिंग, आपको कुछ भी नहीं करना पड़े। एंड शी वॉज वेरी गुड इन नीटिंग, तो लास्ट ईयर्स तक भी वो नीटिंग किए हैं, तो आप नीटिंग करो, ये सब करो, आपको कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, घर का कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बेटा एक बार घर घुस जाएगा, टीवी भी बंद, कुछ नहीं चलेगा, फिर नो साउंड, पिन ड्रॉप साइलेंस होना चाहिए। बेटा घर में घुसेगा, बचपन में कार्टून देखता था, सिर्फ कार्टून ही चलेगा, बड़ों का कुछ भी नहीं चलेगा। बेटा होने के बाद से सोच लो, पिछला 19-20 ईयर्स मैं सीरियल और ये सब कुछ नहीं देखी। अच्छा हुआ, मेरा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हुआ कार्टून देख देख के। तो 9 to 9 अगर आप पिता का सेवा नहीं कर पाए हो और बच्चे का सेवा करते हो, तो 9 to 9, 9 का भवात भवम 5th हाउस है, तो बच्चे का सेवा करते हो तो भी पिता का सेवा समान पुण्य मिलता है। और अगर आप पिता का सेवा करते हो, जो आदमी, जो इंसान पिता का सेवा किए हैं, वो इंसान जो है वो बच्चे का भाग्य अच्छा बनाया और खुद का भाग्य भी अच्छा बनाया, क्योंकि 9th हाउस तो आपका भाग्य है, 5th हाउस आपका बेटा है, भाग्य एंड पिता बोथ है 9th हाउस, एंड 5th हाउस आपका बेटा है, बेटा बेटी जो भी है, बच्चा है। तो क्या हुआ, अगर आप पिता और बच्चे दोनों का ख्याल रख पाए हो तो आपका भाग्य कोई नहीं रोक सकता है। बोल सकते हैं कोई, बहुत सारे लोग बोल सकते हैं हाँ मैंने पिता का भी ख्याल रखा, बच्चे का भी ख्याल रखा, लेकिन उससे मेरा भाग्य का उदय कुछ नहीं हुआ, मेरा इनकम बहुत कम है। आपको अभाव नहीं होगा, इनकम बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा मकान है, सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है, वो नहीं। मतलब ऐसे लोग होते हैं ना कि आज आपको 10,000 का ज़रूरत है, कल के अंदर कहीं ना कहीं से आ जाएगा आपका पैसा, ऐसा क्वाइट पीसफुल लाइफ होता है अगर आप पिता और संतान का ख्याल रखोगे। अब 4th हाउस एंड 7th हाउस, माँ और पति, माँ और पत्नी, उसके बारे में मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है।
या इन स्मॉल आई कैन से कि 4th हाउस का भवत भव है 7th हाउस, ठीक है। तो अगर आप मेनी रिलेशनशिप रखते हो तो आप माँ का स्वास्थ्य और माँ का सुख, माँ का हार्ट का कंडीशन खराब करते हो। आप जितना अफेयर करोगे आपका माँ का कंडीशन उतना खराब होगा, आपकी माँ उतनी ही नाखुश, भले ही आपको लगे कि माँ को तो कुछ पता नहीं, पता रहने के नहीं, माँ का हार्ट का बीमारी हो जाएगा, पता नहीं रहेगा तो भी, क्योंकि 7th हाउस इज योर स्पाउस, 7th हाउस इज रिलेशनशिप। 7th हाउस में 3-4 प्लैनेट अगर किसी का रहता है तो आपका 3-4 फिजिकल रिलेशनशिप्स होता है। ये एक तो छोटा है, इससे ज़्यादा इलाबोरेट मैं नहीं बोलूँगी, वो मैं अपने क्लास में सिखाती हूँ, ठीक है। तो 7th हाउस इज 4th फ्रॉम 4th हाउस, ओके। सो इफ यू आर टू मच इन टू मल्टीपल रिलेशनशिप, आपका माँ का तबीयत कभी ठीक नहीं रहेगा, आपका माँ का मन कभी ठीक नहीं रहेगा, साइकोलॉजिकली शी विल नॉट बी हैप्पी, हार्ट का बीमारी होगा उनका, एंड उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं जाएगा। सो आपको अभी समझ में आया कि एक्सटर्नल करने से बच्चे का क्या होता है, एंड हाउ भवत भव 4th, 5th एंड 9th हाउसेस आर। ओके, बाय, हैव अ नाइस टाइम।